Dear students, coming to CIQ session number 4. Now, what does CIQ mean? You know that we've already written it comprehensive introductory questions. What do you mean by that? This way, the interviewer tends to get the detailed aspect of your personality. I have told you again and before also, and I am repeating it again. The point is that whenever you are picked up as a personality, you are a byproduct of your past experiences, your past observations, and past learnings. Everyone is a byproduct of experience, observations, learning. Experience is what he or she goes through. Observation is what he or she observes from the society, and learning is what he or she is taught by elders, seniors, training, otherwise. So we are all a byproduct of the same. So if you are having those essence, suppose you have been taught well by your parents how to behave in society, how to react in society. Similarly, you are taught well by the teachers, you experience many good things from your friends, you observe many things from your friends, and thereafter you have picked up learning from your training and other places. That means you are a complete personality. आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाते हैं अगर आप हर जगह से अपने व्यक्तित्व को सबल करते हैं. पहला पॉइंट, आप कहाँ से सीखते हैं? आप अनुभव से सीखते हैं. दूसरा पॉइंट, आप कहाँ से सीखते हैं? आप अपनी चिंतन क्षमता और देखने की क्षमता सीखते हैं, जिसको हम संपूर्ण रूप से ऑब्जर्वेशन पावर बोलते हैं. ऑब्जर्व करते कि ऐसे चलता है, ऐसे चलता है. मोबाइल कैसे चलता है, आपने ऑब्जर्व करके सीखा है. इसी तरीके से आप ऑब्जर्वेशन दुनिया के लोगों के व्यवहार और व्यक्तित्व और अनुभव से सीखते हैं. और तीसरा कहाँ से सीखते हैं? आप लर्निंग से सीखते हैं. लर्निंग माने ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते. और ये ट्रेनिंग आपके माँ बाप भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग आपको संस्था भी देती है, ट्रेनिंग बाहर से भी आपको मिलती है, कई जगह काम करने पे भी मिलती है. तो ये तीनों प्रणाली से हम अपने व्यक्तित्व को सबल करते हैं. वी मेक अ पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्गर एंड बेटर फॉर ऑल सिचुएशंस. अगर आप सबल नहीं है तो आप किसी का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, हाउ यू विल लीड अदर्स? एयरप्लेन में आप चलते हैं, आपसे सबसे पहले एयर होस्टेस बोलती है कि पहले अपनी ऑक्सीजन लगाई फिर दूसरे की मदद करी. क्यों कहते हैं? बिकॉज इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, हाउ विल यू हेल्प अदर्स? सो द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर. सो लेट्स बिगिन विद दिस 4th सेशन. पहले वाले तीनों सेशन में मैंने आपको आपके करंट अफेयर की ज़रूरतें बताई, आपको एजुकेशन की क्या तैयारी करनी है वो बताई, उसमें भी क्या क्या पहलू है, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की. एवरी टाइम आई एम गिविंग यू things somewhere here and there. Why? Because it will get consolidated and your personality will become supreme. चिंतन क्षमता को अपनी बेहतर कर लीजिए. इतना भी नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना, पर एक व्यवस्थित रूप से सोचना. You have to think in an organized fashion so that you are not zero there. You sound good. You don't have to do over, you don't have to do under, but your homework has to be complete. Suppose they ask you, what will you do in future if you don't get selected? So you should have an answer. You cannot say, sir, I have not thought. I am not thinking beyond. I am just living the moment. No. A thinking person will always keep alternatives in the mind. Not because of negativity, but because of planning. नकारात्मक सोच के साथ नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से. अब आप बोलेंगे नकारात्मक सर चयन हो जाएंगे, तो फिर वो तो सकारात्मक हुआ. अरे भैया, चयन हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक विचार रखिए, पर एक बुद्धिजीवी की तरह, एक इंटेलेक्चुअल की तरह, इन टर्म्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू शुड हैव सेकंड प्लान, बी प्लान, 3C प्लान, व्हाटएवर. And that's the way it runs. Is it clear? Any doubts? Understood? That's it. So let's go down to the session number 4. Strength and weakness, your good qualities. And now this is something which is very, very important. There are many people who are living in a fool's paradise. अपने ही महिमा मंडित में जी रहे हैं. वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं, भगवान जाने क्यों अपने प्रेम में मर गए.
वो अपने आप को अति सुंदर, अति विवेकशील, पता नहीं क्या क्या मान डालते हैं। और ये गलती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अपने बारे में पॉजिटिव नहीं सोचना है। It's not this that you don't have to think positive for yourself, but you also have to have realistic basis for it. Realistic. Who are you? Your good qualities. What are your good qualities? Now, if your good qualities is hardworking, that's wonderful, because that is the base. That is the spine of everything. मेहनत करने की रीढ़ की हड्डी तो मेहनत है, मेहनत, प्रयास. I remember my father telling me, karat karat abhyas jad mat ho suzan, means in the sense that, if you keep working hard. Second, चंदन से अनल प्रकट हुई. अगर आप खूब घिसिए तो चंदन जो बिल्कुल is one of the most very what should I say, that very below temperature, in the sense गर्म नहीं होता, बिल्कुल ठंडा देने वाला होता है. It's a very thanda thing, it's a very cold thing. That also becomes fire. So if you work hard, nothing is impossible. Particularly for the soldiers in the borders, remember, you're there. But if you keep thinking and keep improving yourself in a positive way, don't curse yourself. Learn, improve. Every time appreciate, learn something. Don't pull each other's. दूसरों को खींचो मत, आपस में प्रयास करिए. It will be a beauty to have you as officers, because you have already seen the ground realities. आप लोग अधिकारी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप वास्तविकता से जानकार हैं, वास्तविकता से काफी कुछ मतलब आप जानकार हैं. तो अगर आप वास्तविकता जानते हैं तो आप वास्तविकता में बेहतर कर पाएंगे. You will be able to do better, but provided you are able to do it with leadership, with thinking. So what is your good qualities? Hard work? Yes, it can be. Determination? Yes, it should be, because these are all important. Then what else can be your hard work, your good quality? Your good quality will be learning ability. Yes, you should learn. ये तो हमेशा होना चाहिए. Your learning ability should be your good quality. Your ability to give respect to others. You are obedient, respectful, good quality. Because if you don't understand this, that if you don't show the part of obedience, nobody will obey you tomorrow. आज आप किसी की बात नहीं सुनते, कल वो आपकी बात क्यों सुनेगा? Why will the person listen to you? So obedience is a core area. So you sow, so you reap. जैसा बोगे वैसा काटोगे. तो अपने आप को obedience में लाइए. You go into the obedience. The more you will be obedient, you will realize कि हर चीज system में चलती है. Do you know why the political organization is a problem? Because everybody is disobedient by nature. They are ambitious but disobedient. They are hypocritical. Real नहीं है. कई बार hypocritical, कहते कुछ है करते कुछ है. Unfortunately, human dynamics को कुछ ज्यादा ही झेलते. तो discipline कम है political organizations में. और इसलिए political organization कई political organization अच्छी नहीं है. But जिन political organizations में अच्छी, मतलब there is hard work, there is discipline, they are doing very well. तो obedience होना चाहिए. Next, और क्या good quality हो सकती है? अपनी गलती मानना, ये भी एक बहुत बड़ी good quality. If you accept mistake and correct it, that means you are ready for learning. There are many people who don't accept their mistakes. वो गलती ही नहीं मानते. सुधरने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो आपकी क्वालिटी है कि मैं कभी भी कोई गलती करती हूँ या करता हूँ तो मैं तुरंत उससे सीखता हूँ और सीखती हूँ और अगली बार उसको सुधारती हूँ. Whatever you want to tell. So this is something which you should have. Second, और क्या गुड क्वालिटी होगी आपकी? आप हेल्पफुल हो, मदद करते हो. अगर नहीं करोगे तो दूसरा आपकी मदद क्यों करेगा? So helpfulness is also good quality. You're cooperative, helpful. आपको अगर anybody who has done enough activities of planning, कई बार उसने योजना बनाई, स्कूल में 15 अगस्त की योजना बनाई, दूसरी जगह दूसरी योजना बनाई, तो प्लानिंग की उसको क्वालिटी अच्छी है और उसको कई बार अप्रिसिएशन मिला that you are able to plan in details. लिख सकते हो.
पर याद रखिएगा, लिखने के बाद आपको एक योजना दी जाएगी, और अगर उसको आप अच्छा दे गए उत्तर तो चयन भी सुनिश्चित हो जाएगा, और नहीं दिए तो चयन निश्चित रूप से खारिज हो जाएगा. If you are good in planning, if you have done many planning and you've been appreciated by the different teachers, you can say that, yes, sir, I have practiced planning over the period, so I'm able to identify details and include all of them. And thus I'm good at it. You can say that. But remember, the challenge will be that you will be given a plan. So when you will give that plan, you will give the answer for the same. Then what will happen? What will happen? You will be able to prove your capability. But if you don't answer that plan, then it may be wrong. So do some homework. अपना काम कीजिए, योजना को सोचिए. भाई मैंने इतने आराम से एक पॉइंट बोली थी, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. आप कोई पिकनिक सोचिए, एक बार एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखिए कि पिकनिक में क्या क्या आप ऑर्गेनाइज करेंगे. इमेजिन करिए कि आपको 30 पॉइंट्स लिखने हैं मिनिमम, राइट फ्रॉम प्री प्लानिंग कि किस तरह सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो अगर आप ये 30 पॉइंट करेंगे, आप जानते हैं आप क्या करें? यू आर मेकिंग योर माइंड रिच बियॉन्ड इमेजिनेशन. फिर अगर कभी खुदा न खास्ता आपको पिकनिक करनी पड़ेगी, इफ यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज द पिकनिक, यू विल डू वंडरफुल. सो इफ यू राइट दोस 30 पॉइंट्स, यू विल ओपन योर माइंड फॉरएवर. अब पिकनिक को आपने किया, मान लीजिए एक इमरजेंसी है, ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी जगह में अर्थक्वेक हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? इमेजिन करिए, 30 पॉइंट्स लिखिए, देखिए आपकी बुद्धि कितनी बढ़ती है. सब कुछ तो यहाँ है चिंतन में. द मोमेंट यू इंप्रूव योर थिंकिंग, यू विल बिकम अ जीनियस योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू लुक फॉर अदर्स. इमेजिन करिए, बैठ जाओ, आप बैठे हो, somebody particularly soldiers sitting in the borders, imagine if there is an earthquake, and systematically write 30 पॉइंट्स. ये नहीं कि मैं 3 पॉइंट अब और नहीं सोच पा रहा. सोचो, फायर लग जाए, आप क्या 30 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे? एंड यू विल सडनली फाइंड दैट इन द केस ऑफ फायर, इफ इट हैपेंस एवर, यू विल हैव इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ स्ट्रेटजीज टू परफॉर्म. एक फुटबॉल मैच आपको ऑर्गेनाइज करना है, 30 पॉइंट्स. एक आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, 30 पॉइंट्स. एक आपको इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज करना है, 30 पॉइंट्स. एंड द मोमेंट यू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, many of you have already done it in school, but you have not done with open eyes. Open eyes माने दिमाग के चक्षु नहीं खुले थे. Your mind was not open. सर आपने हाफ कॉन्शियस में काम किया, बेहोशी में काम किया. पर आप में से जिसने होशी में काम किया, जिसने होश में काम किया, the person who's done it with awareness is brilliant, because now he has trained himself or herself for future. तो आप में से कई लोग होश में काम करते हैं, कुछ बेहोश काम करते हैं, जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं पर सीख कुछ नहीं रहे. बट देयर आर सम पीपल हु लर्न अ लॉट. ना इसका रिवीजन टाइम आ गया. अगर आपको प्लानिंग लिखना है और आपने कई चीजों को 20-30 ऐसा काम कर लिया, आपकी योजना क्षमता में एक प्रणाली आ जाएगी. यू विल लर्न द सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग इन अ प्लान्ड फैशन. You will learn the sequence of identifying resources. I mean, you learn the art of identifying resources. संसाधन कौन से उपयोग करने, उसकी सोच आ जाएगी और उसको कैसे आगे बढ़ाना है. So learn, these are the soft skills. You can learn a lot and we are there to help you. Just work on it. We are coming up with a lot of other programs which will make you a masterpiece of your personality. Because your richness, your grasping power, if you are listening to me, if you are learning from me, then of course you are learning something new. No, it won't be credit to me, it will now be yours. शिक्षा की तो सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आपने सुना पर आपने दिमाग में उसको ग्रहण किया, तो अब आप सबल हो गए. मैं था, मैं हूं, पर आप भी हो गए. You also become stronger. So please develop your thinking power, and that's going to do. So planning can be there. Now there are some people who are very good in convincing. I did tell, because I learned the art of convincing from my father. He always said that whenever you have to convince somebody, don't say from your perspective, speak from their perspective. उनके नजरिए से पढ़िए, उनके नजरिए से बोलिए, उनके लाभ से बोलिए. I read this book of General Chibba,
which is on leadership, जनरल शिब्बा साहब की एक किताब है लीडरशिप में, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट कोट किया है. लॉर्ड कृष्णा हैज सेड, men are selfish people in the world. Men माने men women both to be precise. They're all selfish. Everybody has their self-interest, and a leader has to identify their self-interest and thereafter speak so that their self-interest is included in his plan. जब आप किसी के स्वार्थ का लाभ, मतलब स्वार्थ को आइडेंटिफाई करके उसके लाभ को जोड़ के देखते हैं, आप एक संस्था तैयार कर लेते. यू अंडरस्टैंड, यू कम्युनिकेट बेटर एंड द पर्सन विल एसोसिएट विद यू बेटर. आपके साथ जुड़ेगा भी सही तरीके से, क्योंकि उसको आपका अस्तित्व से मतलब नहीं है, पर आप अपने लाभ से जरूर मतलब. तो इफ योर लाभ, इफ योर प्रॉफिट इज म्यूचुअल, दैट इज द बेस्ट प्रॉफिट. That is the best profit. You will also prosper, the other person will also prosper. तो कभी भी आप convince करते हो तो always speak examples which make them understand. Give examples which identify their personal things. Now that is the beauty. So you can say you are convincing. Now I have given you good amount of qualities. If you are punctual, that is also a good quality. अगर आप समय से आते हैं, punctual है, बहुत अच्छा है, good quality. आप उसके लिए प्री प्लानिंग करते हो, आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, बजाय लेट पहुंचते हो. खास तौर से सर्विस पर्सनल्स must have picked this habit, and many of you in the school must have picked this habit. To do that, good qualities. Is it clear? So understand, and if you are able to adjust everywhere, हर जगह adjust हो जाते हो, अच्छे से रहते हो, you can say if you have got good sense of humor, आप मुस्कुराते हो, चैनशील रहते हो और मुस्कुराते हो, you have a positivity. कभी बुरा नहीं मानते हो. लोग चिढ़ाए, अब मुझे आप चिढ़ाओगे कि बाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है, बल्कि मैंने अपने सर का बोझ कम कर रखा है, इसीलिए मैं इतने हल्के से होके आप लोग से बात करता हूँ. सो इफ आई हैव दी पॉजिटिविटी टू एक्सेप्ट इट रादर देन फील बैड, व्हाई, व्हाट इज द कंपल्शन, व्हाई शुड आई हैव यस, इज इट नेसेसरी? ओके, वन डे आई विल शो यू. आई आल्सो enjoyed a very good look, but who's bothered about it? Not at this age. At my age, I deliberately shaved it off. Yes, I did. And why I did this over the period? Because it makes me more relaxed. Now it makes me a different person. It makes me concentrated on what I do. ठीक है, पर खैर मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में से कई लोग, किसी को कोई कह दे यू आर अ फैट पर्सन, गुस्सा हो जाता है. गुस्सा, अरे हो तो बोल रहा है. You are black person, how does it make a difference? You say, क्या बताए यार, डॉक्टर जब काम कर रहा था अंधेरे में कर रहा था तो अंधेरे में निकले. Anything bad? Nothing wrong. And the moment you will smile at yourself, nobody will tease you others. इतने सारे बच्चे यहाँ से ऑफिसर बनने गए, and all of them unfortunately were said by somebody or the other कि तुम अपना रिजर्वेशन करा लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. और मैंने सबको बोला था कि बोल देना, वो तो मैं क्या कराने की जरूरत, लटक वटक के जाएंगे, वैसे भी नहीं होगा तो नहीं होगा, बुरा मानने की जरूरत नहीं, उसमें नाराज कभी मत होना. एंड दे ऑलवेज सेड दिस, दे डिड नॉट टेक इट, नोबडी टीच देम फर्दर. नतीजा वो तो सिलेक्ट हो गए, वो साहब जो बोल रहे थे वो बाहर हो गए. सो यू नो देयर आर नेगेटिव पीपल यू विल कम इन योर लाइफ. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट एंड लर्न टू लिव इट नाइसली. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू समटाइम वंडर कि इतने जो ये बड़े बड़े व्यक्तित्व हो जाते हैं, लोग अलग जाके क्यों रहने लगते हैं, अकेले क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि हमारी इस मानव सभ्यता की एक सबसे बड़ी समस्या है, मानव इतना ईर्ष्यालु है, इतना लालची है, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी भी है और लालची भी है, और इतना ज्यादा दुष्ट है. कईयों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखा हूं कि वो इतने दुष्ट हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और इतने लालची, इतने ईर्ष्यालु, मिल के काम नहीं करना चाहते, एक दूसरे का काम लगा के काम करना चाहते. दे वांट टू डिस्टर्ब अदर्स एंड डू इट. वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. द पीपल हु आर देयर इन द आर्म फोर्सेस, बी वेरी हैप्पी, यू आर लिविंग इन अ डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर. जो फौज में है वो लोग को खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविकता में बहुत ही अनुशासित माहौल में रह रहे हैं. सिविल में आइए, हर दिन समस्या, एवरी वन इज मेंटली इल. इसीलिए मैं ये संस्था को जब पढ़ाता हूँ, व्हेन आई टीच पीपल, आई टीच विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज आई वांट यू टू गो एंड जॉइन दैट फोर्सेस. इट विल एटलीस्ट स्पेंड, इट विल एटलीस्ट कंज्यूम योर लाइफ पॉजिटिवली.
till 50+ of age. आप जिंदगी अच्छी जी लेंगे, एक जगह सबल हो जाएंगे और एक पर्सनालिटी मैच्योरिटी की बना लेंगे। नहीं तो ये जो अभी 10-20 साल स्ट्रगल के इसमें परेशान हो जाएंगे। सो रिमेंबर टू बी नाइस। गुड क्वालिटी समझ में आ गई। अब आइए बैड क्वालिटीज। बैड क्वालिटीज ज्यादातर हम लोग, कई चीजें होती हैं जो दुनिया की हम सीखते नहीं। वी आर नॉट एबल टू लर्न, लाइक समटाइम्स वी गेट लेट, इट्स ओके, इट कैन गेट इनटू हैबिट। कुछ लोगों को चेकलिस्ट बनाने की आदत नहीं होती कि हर चीज चेकलिस्ट में लिखें, ये भी एक बैड क्वालिटी। अगर ये बनाने लगेंगे तो और अच्छा उनका सिस्टम हो जाएगा, भूलना कम हो जाएगा, कोई चीज की परिकल्पना से उनके पास दिक्कत कम होगी। So that is a very good quality. My father used to make a checklist whenever we used to go to any outstation. Identity card रखना है, health card रखना है, ये करना है, वो करना है, everything he used to write it down. And सबको रखते जाते थे, टिक करते जाते। He learned from the armed forces, he learned by himself, and that became his strength. हमसे होता था कई बार, हम जल्दी जल्दी रखो, फिर अरे यार वो भूल गए, अब चलो किसी तरह मैनेज करेंगे। बट भूल क्यों गए? क्योंकि चेकलिस्ट की हैबिट नहीं। तो बैड क्वालिटी थी। ये चीज भी आपकी भी हो सकती। सीखने की बात, कई लोग कपड़ों के बारे में बहुत सजग नहीं होते। मैं जैसे थोड़ा सा कम हूं। आई डोंट लाइक टू डेलिबरेटली वर्क अप टू मच ऑन क्लोथ्स की ये पहन लिया, वो कर लिया, बड़े सज गए। नो, इट इज नॉट माई हैबिट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई माइंड एक्टिविटीज। तो एज अ रिजल्ट ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम दोनों का संतुलन बना ले तो अच्छी बात हो जाएगी। तो ये हमारी हल्की सी बैड क्वालिटी है कि नहीं है? दो इट इज नॉट डेट्रीमेंटल। कोई भी बैड क्वालिटी जो हानिकारक ना हो, जैसे झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, ये सब बैड क्वालिटीज हानिकारक। तो अगर आप में है तो कृपया आप फौज ना ज्वाइन करें, प्लीज डोंट ज्वाइन। इफ यू लाई, you love lying, don't do it. If you lie for situational factors, it's okay. But if you lie every time for your benefit, please don't join forces. अगर आप फौज हमेशा झूठ बोलते हैं, हर जगह अपने लाभ के लिए झूठ बोलते रहते हैं, तो आप कृपया फौज में मत ज्वाइन करिए। क्योंकि फौज एक संस्था है, एक अनुशासन की संस्था। इट्स अ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी रेपुटेशन बन जाएगी और आपका इज्जत नहीं होगी, पहले ही आपकी इज्जत पहुंच जाएगी। People will not respect you. That is unfortunate. So please don't do that. Is it clear? तो अगर आप में झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, कृपया फौज मत ज्वाइन करें। कभी आप बाई चांस किसी के दुख ना हो तो आप कोई छोटा मोटा झूठ बोलते हो, चलेगा, बट नॉट टू मच। इज इट क्लियर? सो बैड क्वालिटी में अगर वो है तो भाई आपको गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, यू आर शॉर्ट टेम्पर, डोंट ज्वाइन द फोर्सेस। इसका मतलब बुद्धि कम चलती है। गुस्सा किसको ज्यादा आता है? जिसके पास बुद्धि कम होती है, जिसके संवेग, इमोशंस, नॉनसेंस ज्यादा है। दैट पर्सन इज अ पर्सन हु विल बी इमोशनली स्टूपिड, एग्रेसिव। जब भी कोई विचार आए, ना सोचा ना साचा। अच्छा, इसके पीछे लोग भी होते हैं। आई हैव टोल्ड यू एवरी टाइम, एवरी बिहेवियरल टेंडेंसी इज प्रमोटेड बाय आउटसाइड सपोर्ट और आउटसाइड रिवार्ड। कोई भी नकारात्मक, अगर बचपन में आप कुछ लोगों के साथ रहे या कोई ऐसे लोग हैं जो दुष्ट लोग से आपके पीछे से ताली बजाते हैं, वो आपको हवा दे रहे। नहीं तो आप अपने में संशोधन करेंगे। एवरीबडी लर्न्स, everybody learns, but if you don't learn, you are having somebody wrongly supporting you. I have told you, I learned this very well from the Allahabad University, that behind every nuisance maker there is a supporter, hidden supporter, other supporter, and that person is a very very dirty person in mind. वो बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति होता है, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वो सिखाता अलग है, करता कुछ और है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? दूसरों के घर में आग लगाते हैं। दे बेसिकली burn fire in others' house, but in their place they realize that they are wrong. Remember this. Now qualities you want to improve, you know that qualities, अच्छा bad qualities में और कोई चीज हो सकती है। हाँ, कभी कभार आपका हो सकता है कि like I used to, you know, I am sorry to say, but sometimes in winter times I used to avoid bath, take a shortcut. तो bad quality है, पर इतनी कहाँ है? मैं किसी का नुकसान थोड़े ना कर रहा हूँ। So these kind of qualities which you do, not that you have to justify, you can say, sir, I'm sorry I used to do this. इस प्रकार की छोटी मोटी क्वालिटी चलती। Some people do cigarette smoking,
some people, but that should not be in excess. That is all. It's okay, it's a bad quality, but it's not negative towards the others. Any bad quality which is harmful to the society at large is a negative quality, really. अगर कोई भी आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति है जो पूरे समाज को या पूरे सिस्टम को हिलाती हो, तो वो गंदी विशेषता है आपकी, बहुत ही गंदी क्वालिटी है, आपकी बुद्धिहीनता है. That is lack of wisdom. So don't do that. Qualities you want to improve. What are the qualities you want to? Is it clear? Yes or no? अब कुछ लोग हैं रिलीजियस हैं, कई बार या कोई चीज लापरवाही कभी कभार हो जाती है, जल्दी हो जाती है, देर हो गए तो एक्सीडेंट कर दिया, इस प्रकार की छोटी मोटी चल सकती है, पर बहुत ज्यादा लापरवाही लगातार नहीं अच्छी है, तो वो बैड क्वालिटी नहीं, आपके लिए घातक हो जाएगी. इफ यू टेल दैट यू आर परपेचुअल प्रॉब्लम मेकर, यू आर अ परपेचुअल नेगेटिव थिंकर, आप निरंतर नकारात्मक सोचते हैं, निरंतर, ये तो फिर आप माफ कीजिएगा, आपका ये जो रहस्य उद्घाटन है आपके लिए हानिकारक होगा. दिस काइंड ऑफ डिस्क्लोजर of your personality will be harmful for you, will be detrimental. So if anything which is beyond limit, bad qualities in you, as I told you, will also, this kind of confession will not be taken as truthfulness. It will be considered as truthfulness, but will be detrimental to you. This truth will make you pay a huge price. ये सच्चाई आपको खा जाएगी, क्योंकि ये आपको खुद सुधारना चाहिए. Why this quality? Because इसमें बेशर्मी है. चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं. There were many people who asked that the politician of Lalu Prasad Yadav and other people, they used to never work, but they used to laugh it out. Yes, हम ये करते थे. I remember one show in which he had come with Farooq Sheikh. ये जिंदगी है kind of thing. And where Lalu Prasad was saying that हम जब MSc में जाते थे तो हमने टिप लगा देते थे, टिकट का मांगता था, देते थोड़ी न थे. तो now as a responsible public figure, he was saying something which was perpetually wrong. It was giving a wrong example to the society. भले वो सत्यता है, पर ये सत्यता उसकी बेशर्मी में मानी जाएगी और इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ. बिहार के कई लोग ने बोला, देखा हमारे मुलायम कितना मुख्यमंत्री कितने ईमानदार हैं, बट देखिए हम भी यही करेंगे, हम टिकट ट्रेन में चलेंगे, टिकट नहीं खरीदेंगे, अभी तो हम स्टूडेंट है ना, तो हम काहे देंगे, why will I pay? And you know what he did was, he really created a funny situation. So anything, please understand this. By this example, I want to explain you that anything which is shamelessly stupid, which is harmful, which will set bad examples, may be truthful, but is not acceptable. Is it clear? So I hope the confusions are clear to you. So I gave you this example only to make you understand that. Now we come down to qualities you want to improve. Naturally, if you are not good in speaking, you have to improve your speaking. If you are not good in expressing, writing, you have to improve on it. If you think that somewhere your knowledge is restricted, भाई आप लोग में से कई बच्चे अभी हाल ही में कॉलेज से छुट्टी पाए या हाल ही स्कूल में पाए, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है. So if you are not well experienced, you have not traveled much, you can say that it is something which I want to improve. You feel I don't have enough knowledge of vocabulary, आपकी vocabulary अच्छी नहीं है, तो आप उसको सुधारना चाहते हैं. Yes, you can say that. Similarly, all these things will come into qualities you want to improve. जिससे आपका सुधार हो, जिससे आप आगे बेहतर बने. टेक्निकल नॉलेज आप सुधारना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं, AI सीखना चाहते हैं, और भी कई चीजें सीखना चाहते हैं, ताकि यू कैन बी मोर इफेक्टिव. Anything which is going to make you effective should be taken, and I think as a open-minded person with eye open for learning, I think you should be liking to improve it. So that should be all written here. आप लिख सकते हैं. क्वालिटी एज पर अदर्स ओपिनियन, आप माता पिता के बारे में छोटी मोटी चीजें बता दीजिए. जैसे आप when you were, at least I used to do that. In exam time, my mother used to force me food and I used to put it in the drain. दूध दिया, रात में डाल देते थे. अब ये सब बदमाशी करते थे तो उसमें डांट पड़ती थी. क्यों डाल देते थे भाई, ज्यादा खा लेंगे, सो जाते थे.
फिर होमवर्क नहीं रहता, माँ अपना प्रेम देंगी, उनका प्रेम को ठुकराओ तो डांट खाओ, तो उसको मैनेज करना होता है। इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें होती। गाड़ी में स्टंट हम बहुत किया करते थे। आई यूज्ड टू डू स्टंट्स बट दैट वाज आल्सो रॉन्ग। माय फादर यूज्ड टू से दैट इट इज वेरी गुड टू बी डेयरडेविल बट नॉट डू सच स्टंट्स, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। तो इस प्रकार के अदर्स ओपिनियन के बेसिस पे कुछ चीजें होती। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा मिठाई खाने के पसंद होते हैं, उस पर दूसरे लोग कहते हैं कि मिठाई की शौकीन, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, पर यह अनुभव होते हैं। देयर आर समटाइम्स, जब आपने बचपन में कोई बदमाशी की होगी, मुझे याद है मैं अपने स्कूल में सिकंदराबाद में आई हैड गॉन अवे विद माय फ्रेंड टू हिज प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग माय थिंग। ऐसे प्रकार की लापरवाही मैंने की, तो ये यहाँ पे आएगी क्वालिटीज एज पर अदर्स ओपिनियन। कुछ गलतियां हुई होंगी, आपकी कोई घटनाएं हुई होंगी, आपने कुछ सीखा होगा, वो घटना से आपने कुछ सीखा हो, जो घटना से दूसरे लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला पर आपने उससे कुछ सीखा, दैट विल कम अंडर क्वालिटीज एज पर अदर्स ओपिनियन। यू गेटिंग द पॉइंट? सो यू विल बी नोइंग व्हाट टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। अब अपनी आत्माओं में झांकिए, अपने व्यक्तित्व में झांकिए, प्लीज लुक इनटू इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। व्हाई डू यू वांट टू बी समबडी एल्स? Yes, while preparation, don't speak extreme. Don't try to pretend I am the best. Don't pretend I am the worst. Yes or no? ना बेहतर बहुत शानदार दिखिए, ना बहुत खराब दिखिए। जो वास्तविकता आपकी व्यक्तित्व से मेल खाता है, आपके अनुभव से मेल खाता है, आपकी लर्निंग से मेल खाता है, प्लीज राइट दैट डाउन। And this is what the CIQ is all about, because this is something where you have to explore your own psychological tendency. अपने मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति और अपने रुचि अभिरुचि, आपकी सोच चिंतन, सब चीज को पढ़ता है। So I hope you've understood this. Hope you can work it up. Yes, we can guide people who are coming out to us one-to-one. They are always welcome. But for you all guys who are at distance, please keep working, because the Rome was not built in a day. एक दिन में सब कुछ बदलाव नहीं होता। व्यक्तित्व में चिंतन समझना, उसको अपने अंदर ग्रहण करने में थोड़ा समय लगता है। सुधारते रहिए, बेहतर करते रहिए और जिंदगी में सफल बनिए, यही मेरी शुभकामना है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू सेट बिहाइंड एवरी CIQs, हम हमेशा ये कहते हैं कि ये चीज याद रखिए। ये पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम। प्लीज रिटन होमवर्क करिए हर चीज में। गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज को लिख के देखिए, पढ़िए उसको दोबारा, ज्यादा लिख रहे हैं तो कम करिए। इस तरीके से क्लैरिटी ऑफ माइंड को डेवलप करिए। आप फ्लुएंसी स्पीच करिए, एग्जाम्पल्स रेडी करिए और जेन्युइन परफॉर्मेंस के लिए तैयार होइए, ताकि जो आप दिखें, जो आप हैं, कुछ हद तक वो दिखे और वो भी सकारात्मक। डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल। Nobody will give you selection. They may have sympathy for you, but they will not give you selection. Nobody helps crying people. That is the truth which I have experienced. Even after your best effort, when you go through bad times, you have to be fighter on your own self. अपने आप से आपको मेहनत करनी होती है, अपने आप से फाइट बैक करनी होती है, और आप ही अपने हाथों के जगन्नाथ है। You are the person who can make yourself stronger. So do that. So remember, this is all I want to tell you. CIQ का इस श्रृंखला के बाद लास्ट एक और पॉइंट पे भी आपके कुछ पहलू पे वर्क करेंगे। होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।